वेलकम टू इंटेंथ लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। क्लियर? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में लोग दो विशेष चीजें देखेंगे। व्हाट इज द टॉलरेंस टेस्ट एंड नेक्स्ट इज द फेलिंग टेस्ट। फर्स्ट वी गो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। फर्स्ट नंबर इज द oxidation of aldehydes. Clear? First thing, when we compare oxidation of aldehyde ketones, क्योंकि हम लोग कंबाइंड चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन का, तो जरा इनमें कंपेयर भी कर ले हम लोग। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत सरल है, बहुत इजी है, ठीक, क्योंकि कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना, वो थोड़ा मुश्किल से होता है। उसके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं, और इसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनसे भी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर? ये इट इज इजीली ऑक्सीडाइजेस बाय oxidizing agents, that is oxidants, like KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, etc. Clear? And it is also oxidized by mild oxidizing agents. Clear? Mild means weak oxidizing agent. It means weak oxidizing agents. Clear? Like Tollens reagent, Fehling solution, Benedict solutions, etc. Clear? Yeah. Now, first we go tolerance test. First is the tolerance test. It is also called silver mirror test. It is also called silver mirror test. Clear? First we go, what is the tolerance reagent? Tolerance reagent क्या है हम लोग पहले जान लें हम लोग, ठीक है ना। First we go, what is tolerance reagent? Really, ठीक है ना। तो यहां से पहला टॉपिक आपका आता है what is tolerance reagent. इसके अंदर पहली चीज देखते हैं what is tolerance reagent. Clear? This tolerance reagent is alkaline solution of ammonical silver nitrate. Silver nitrate. How you prepare it? ये कैसे बनाते पहले ये भी तो जान ले हम लोग, ठीक। It is prepared under following steps. कौन कौन से स्टेप्स हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। The first step, तो हमने कहा फर्स्ट स्टेप में सिल्वर नाइट्रेट
reacts with NaOH solution. Clear? As given. पहला रिएक्शन तो आपका यही पहला पॉइंट हमारे पास है कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन reacts with NaOH solution. You know what forms? Silver oxide and sodium nitrate and also water. You know, silver oxide, it gives white precipitate, white appearance. What happens in the second step? In second step, really, in the presence of ammonia solution, this silver oxide is dissolved to give diamine silver solution. In this way, they are in presence of ammonia solution. Ammonia solution, that is NH3 plus H2. Clear? White precipitate is dissolved to give colorless solution known as Tollens reagent. Clear? Tollens reagent. सॉल्यूशन कैसे होगा आइए उसके बारे में भी बात कर लें हम लोग. This white appearance solution, that is a sodium nitrate and H2O. It reacts with ammonia solution. Its solution is taken. Then what is formed? The colorless solution. This solution is formed. This is colorless solution. Clear? It is really diamine silver nitrate solution. Diamine silver nitrate solution. And you know, this solution is alkaline due to presence of NaOH. So, basic medium, this वहां कहां से प्राप्त हो रहे हैं ये? From the alkaline solution, NaOH solution से. And this alkaline solution again reacts it to form diamine hydroxide solution. Yeah. Actual में इसको this is called Tollens reagent. This is a Tollens reagent. Clearly? Shortly, you can also represent in this way. In this way, this is solution. Clear? This solution, this is also represented by this. Now, how it react with aldehyde? कैसे रिएक्ट होता है अब आइए उसके बारे में बात करते हैं. Now, Tollens reagent reacts with aliphatic and aromatic aldehydes. ये दोनों से रिएक्ट करता है
बस CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए हमारे पास, वो चाहे एलिफेटिक का हो या एरोमेटिक का हो, ठीक है ना। ये and reduces into silver mirror, यानी कि टॉलरेंस रिजल्ट रिड्यूस हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है, अपचयन हो जाता है, बट एल्डिहाइड is oxidized into carboxylic acid। तो दो बातें हुई, इट इज रिडक्शन ऑफ, देखिए रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रिजल्ट इनटू सिल्वर मिरर एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। तो यहां पर एल्डिहाइड कैसा काम कर रहा है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट का, इट इज ठीक है ना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहा है, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड। कैसे रिएक्ट करेगा आइए वो देखते हैं, ठीक, इसके रिएक्शंस फॉर्म में। देखिए इट इज अ कॉमन एल्डिहाइड, clear, you can take चलिए इसके आयनिक फॉर्म में पहले लिखते हैं हम लोग, this is a real valence reagent, clear, that is alkaline solution of silver nitrate, it gives, this is carboxylate ion, क्या नाम बताया मैंने, carboxylate ion, and this is and this silver is obtained as silver mirror। ध्यान रहे ये एल्डिहाइड ग्रुप का एक टेस्ट है, इट इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड है कि नहीं है, उसके लिए एल्डिहाइड को, कंपाउंड को हम लोग सिल्वर सॉरी क्या कहते हैं, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज टॉलरेंस रिजेंट के साथ मिला करके यदि हीट करेंगे, ठीक, तो यहां पर सिल्वर मिरर प्राप्त होगा। या कि प्रैक्टिकल टेस्ट में भी है, आप एक टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड लीजिए और उसमें टॉलरेंस रिजल्ट में लाइए, उसको हीट करिए टेस्ट ट्यूब की दीवार में, ठीक है ना, यदि सिल्वर शाइनिंग आ रही है तो वो सिल्वर मिरर की, समटाइम्स कभी कभी, ठीक है ना, उसकी जगह ब्लैक प्रेसिपिटेट भी प्राप्त हो सकता है। तो ये सिल्वर शाइनिंग शो करती है कि गिवन कंपाउंड कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप, यानी ये CHO ग्रुप की है। जैसे आगे आप बायोमॉलिक्यूल्स में देखते हैं, वहां ग्लूकोज में CHO ग्रुप है, तो ग्लूकोज आल्सो गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, आल्सो गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। क्लियर। तो ये टॉलरेंस टेस्ट जो है वहां पर भी आपका प्राप्त होता है, ठीक। अब R की जगह आपका हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या एराइल ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप रिंग भी हो सकती है। इन द सेम वे इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आयनिक फॉर्म में ना रख करके हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड हेंस यू राइट
The obtaining compound is ammonium acetate, ammonium carboxylate and silver mirror. टॉलरेंस टेस्ट का ये भी रिएक्शन सही है और ये भी सही है. क्लियर. और कुछ बुक्स में आप ये भी रिएक्शन लिखा हुआ देखेंगे, रियली RCHO reacts with Ag2O to give carboxylic acid. ठीक है ना. अब R की जगह मान लीजिए हमारे पास में मेथाइल ग्रुप है, तो यहां मेथाइल ग्रुप आपका आ जाएगा, तो क्या होगा एसिटेटाइन. H है, H आ जाएगा आपका फॉर्मेटाइन. यदि आपके यहां पर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है तो बेंजीन रिंग आ जाएगी आपकी बेंजोएटाइन. क्लियर. ये हमारा ख्याल क्लियर हो गया होगा. आर की जगह हाइड्रोजन, ठीक, आर की जगह हाइड्रोजन, ठीक है ना, और एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, लाइक मिथाइल और एराइल ग्रुप, ठीक, लाइक दिस इज, और यू कैन से C6H5. इनको रख करके आप इनके रिएक्शंस बनाइए और देखिए क्या बनना है. प्रोडक्ट जो मैंने नाम बताया प्रोडक्ट्स बनेंगे. ठीक, इट इज योर वर्क आपके लिए. नाउ वी गो फैलिंग टेस्ट. फैलिंग टेस्ट में कुछ खास बातें हैं, ठीक है. Fouling test. First number, it is given by only aliphatic aldehydes, not by aromatic aldehydes. Aromatic aldehydes में ये टेस्ट नहीं होता है. ये देखें एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड में डिफरेंस आ गया, ठीक है ना. गिवन कंपाउंड एल्डिहाइड है वो आप तो टेस्ट कर सकते हैं टॉलरेंस रिजल्ट से. अब वो आपका एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है वो आप इस टेस्ट से टेस्ट कर सकते हैं. ठीक. अब यहां पर फैलिंग, तो फैलिंग सॉल्यूशन इसके लिए जरूरत पड़ती है. वो कैसे बनाते हैं हमारे पास, ठीक किया. इट इज डन बाय फैलिंग सॉल्यूशन, which is prepared by mixing फैलिंग solution A and B. फैलिंग solution A, फैलिंग solution B. अब ये क्या फैलिंग solution है? फैलिंग solution, आइए इसके बारे में देखते हैं. ध्यान दीजिएगा. फैलिंग सॉल्यूशन ए, व्हाट इज दिस? इट इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट. क्लियर. दैट इज CuSO4.5S2. What is fouling solution B? It is solution of Rochelle salt. ठीक है, ये Rochelle salt का solution होता है. Rochelle salt. What is Rochelle salt? It is also called sodium potassium tartrate.
in alkaline medium, alkaline medium. ये टार्टरेट वर्ड है, ये बड़ा कहां से मालूम है? टार्टरिक एसिड से. यू नो फॉर्मूला ऑफ टार्टरिक एसिड? दिस इज टार्टरिक एसिड. ये टार्टरिक एसिड है भाई, ठीक है ना. इसको आप जो है यहां पर NaOH और के सिलेक्ट कराएंगे तो ये H रिप्लेस हो जाएंगे आपके और यहां आ जाएगा ये. नाउ दिस इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट और रॉचेल सॉल्ट. इसका अल्कालाइन सॉल्यूशन है. ओके, NaOH में बनाया सॉल्यूशन तो अल्कालाइन तो हो गई. अब इनसे पहले सॉल्यूशन कैसे बनेगा आइए वो देखते हैं. फैलिंग सॉल्यूशन कैसे बनता है आइए वो देखते हैं. यू मिक्स equal molar quantity of Fehling solution A and B. A is colorless solution, A is light blue solution, but B is colorless solution. When you mix both, then deep blue solution is obtained. It is called Fehling solution. Like this. Yeah. Copper sulfate 5S2. Clear? It is a Fehling solution A. It is a light blue in color and the alkaline Rochelle salt. Rochelle salt. Clear? That is CHOH. Alkaline solution है. It is colorless solution of Fehling B. अब आप इन दोनों की इक्वल मोलर क्वांटिटी मिक्स कर दीजिए तो आपको मिलेगा Fehling सॉल्यूशन. ठीक है ना, Fehling सॉल्यूशन. इसका फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और यू कैन राइट, ठीक है ना, क्यूप्रिक आयन सॉल्यूशन इन अल्कलाइन मीडियम, दैट इज OH माइनस. क्लियर? Yeah. Now this Fehling solution react with aldehyde, aliphatic aldehyde to give white precipitate, red precipitate of cuprous oxide. Its form, ठीक है, its name is cuprous oxide. इसका रिएक्शन क्या होगा आइए इसको विचार करते हैं. This is aldehyde. R is hydrogen or alkyl group, never aromatic ring. Clear? Now this is reacts with alkaline solution of Fehling solution. It gives carboxylase ion and red precipitate of cuprous oxide. You can write this reaction also in this form. The aldehyde plus their copper hydroxide solution gives carboxylic acid with cuprous oxide and H2O solution. Clear? This is also. इस फॉर्म में भी रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं. क्लियर हो गई बात? यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा आपका और साथ में आपका और रिएक्शन बनेगा. बैलेंस करने के लिए आप इसको इस फॉर्म में ले आएंगे. दिस इज अ रेड प्रेसिपिटेट. ठीक, तो दिस टेस्ट इज डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड, ठीक है ना, ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक ग्रुप. उन दोनों का डिफरेंस है. क्लियर?
ये देखिए एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन थे, ठीक है ना, और कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके।